A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is microeconomics as well as statistics for economics. So in previous class we have started the chapter that is price determination. So in the last class we have already discussed what is the meaning of the market, what is the meaning of the market and the buyers, and we have studied buyers and sellers, market, product, as well as the market equilibrium, where the market equilibrium found when the demand curve intersect the supply curve. That situation is called the market equilibrium, and the price on which the demand is equal to the supply, that price is called the equilibrium price, and the quantity on which that demand is equal to the supply, demand is equal to the supply, that quantity is called the equilibrium quantity. But sometimes or more of the times the economy is not always in equilibrium. It may be fluctuating. It will be the excess supply or the excess demand. So when there is excess supply, when the supply is more than the demand, and when the demand is more than the supply, okay, so that both situations we have already discussed. When the supply is more than the demand, it means that the more competition is among the sellers, and ultimately the price of the commodity will decrease, so that the situation of the excess supply will again go to the market equilibrium situation. And when the demand is more than the supply, the people have more money to purchase the different goods, so that the competition among the buyers is also rises, and ultimately it forces to the price to be up. ये क्या फोर्स करता है कि प्राइस को क्या करना चाहिए, अब हमें इंक्रीज कर देना चाहिए. तो डिमांड का क्या है, जैसे ही प्राइस क्या होता है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस, सो दैट अगेन दिस पॉइंट द एक्सेस डिमांड सिचुएशन इज gone up to the market equilibrium situation. Okay, so all these we have already discussed in the previous class. So in today's class we are going to study the further topic. So let's get started. चले आगे टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी. इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, shift in demand and supply on equilibrium price and quantity. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली जो इफेक्ट है कि अगर जब डिमांड है, डिमांड का जो शिफ्ट, डिमांड में अगर शिफ्ट हो रहा है एंड द सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है, जब इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे है, उसके बाद जब डिमांड और सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है, तो उसका इफेक्ट कैसा होगा, इसी को हमको क्या करना है, देखना है. ठीक है, तो सबसे पहला कह रहा है इफेक्ट ऑफ डिमांड शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी. अभी क्या हो रहा है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, और सप्लाई कर्व क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा. सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे जहां पे डिमांड क्या है, सप्लाई के इक्वल है, एस कर्व डी कर्व. अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व में. डिमांड कर्व में शिफ्ट होने का मतलब है कि इधर राइट वर्ड और दी लेफ्ट वर्ड. जब डिमांड कर्व क्या होगा, डी से D1 शिफ्ट होगा, मतलब राइट वर्ड D1, एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा D2. जैसे ही डिमांड कर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, तो वैसे ही जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही डिमांड कर क्या हुआ, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, डी से D1 हुआ, तो हमारा क्या है कि प्राइस P था, P1 P2. ठीक है, P प्राइस में आप क्या कर रहे थे, OM
क्वांटिटी कर रहे थे। जैसे ही प्राइस क्या हुआ, P से P1 हुआ तो सप्लाई क्या हो गई आपकी M2 हो गई। जैसे ही प्राइस P से P2 हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई M और M2, ठीक है। वैसे ही आपकी क्वांटिटी में भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही कह रहा है कि ड्यू टू चेंज इन डिमांड, जैसे ही डिमांड में चेंज हो रहा है, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इधर इंक्रीज और द डिक्रीज, कि जैसे ही डिमांड में चेंज हो रहा है तो डिमांड क्या करेगी, या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। इट विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड और द लेफ्ट वर्ड। हमें पता है कि जब हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व करते हैं तो डिमांड कर्व क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। इतना हमें अच्छे से पता है। फिर कह रहा है और डिक्रीज इन, जैसे ही डिक्रीज होगा तो कर्व हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट कह रहा है इफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी राइजेस, इसकी पहली हम कंडीशन ले लेंगे कि इफ डिमांड इज राइजेस, जब डिमांड राइज हो रही है तो क्या होगा। सो इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1। अब क्या होगा, जैसे ही डिमांड कर डी कर राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कर्व हमारा OP से OP1 शिफ्ट होगा। प्राइस हमारी OP टू OP1 होगी। फिर कह रहा है राइज इन प्राइस विल कॉज एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई, जैसे ही प्राइस में राइज होगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होगा। सप्लाई का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा फ्रॉम E टू E1, वो E से E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट चला जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM टू OM1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो OM थी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, OM1 हो जाएगी, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कि ड्यू टू जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगा तो कर्व हमारा क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एंड ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई की वजह से हमारा कर्व क्या हो जा रहा है, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। प्राइस क्या हो जा रहा है, OP से OP1 हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E से E1 हो जा रहा है, और जो क्वांटिटी हमारी OM थी वो क्वांटिटी इंक्रीज होके OM1 हो जा रही है, ठीक है। ये तब हो रहा है जब देयर इज इफ द डिमांड इज इंक्रीजेस। सेकेंड कंडीशन है इफ डिमांड डिक्रीजेस, जब क्या है डिमांड डिक्रीज हो रही है। इस कंडीशन पे आप देखिए जो आपकी प्राइस OP थी वो प्राइस डिक्रीज होके जैसे ही कम होगा डिमांड कर्व आपका क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, दैट इज D2 पे कर्व शिफ्ट होगा। जैसे ही कर्व D2 पे शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम प्राइस जो OP थी वो क्या हो गई आपकी, OP2 हो गई है। OP2 होने की वजह से जो क्वांटिटी आप पहले OM प्रोड्यूस कर रहे थे अब OM2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो गया, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, एंड देयर इज डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या हो गया, वो डिक्रीज कर गया है, ठीक है। जैसे ही डिमांड क्या होगी, डिमांड डिक्रीज हो जा रही है तो आपका बेसिकली क्या होगा, डिमांड के डिक्रीज होते ही डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस विल ऑल्सो डिक्रीज, प्राइस भी OP से OP2 हो जाएगी, क्वांटिटी भी आपकी OM से OM2 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई बिकॉज मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई का, सो द पॉइंट इज अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज E2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सप्लाई शिफ्ट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि जब सप्लाई में कोई शिफ्ट होगा, ये हमने पढ़ा कि डिमांड कर्व क्या हो रहा है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जब सप्लाई कर्व क्या होगा, वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, सो इफेक्ट ऑफ सप्लाई कर्व, इफेक्ट, हाँ ठीक है, इफेक्ट ऑफ सप्लाई शिफ्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट होगी इन दैट कंडीशन क्या होगा। सो ड्यू टू चेंज इन सप्लाई, जैसे ही सप्लाई में चेंज होगा द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल इधर इंक्रीज और द डिक्रीज, ठीक है। तो सप्लाई का क्या होगा, वो तो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा।
डायग्राम माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना डायग्राम के कोई मतलब नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं, दैट दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, ओपी प्राइस, ओएम क्वांटिटी। सप्लाई कर्व क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो जब हम लोग लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड शो करते हैं तो डॉटेड लाइन से शो करेंगे, जो क्या करेगा वो मेन इक्विलिब्रियम से आपको डिफरेंस शो करेगा। एस एस S1 S2 सॉरी S1 S2 एंड S2। अब न्यू इक्विलिब्रियम में हम लोग बनाते हैं, यहां पे ये क्या हो जाए, सॉरी ठीक है। अब ये हो गया आपका P2 P1 M1 और M2, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया। अब ये कह रहा है कि ड्यू टू चेंज इन सप्लाई द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल इधर इंक्रीज, जैसे ही इंक्रीज होगा तो कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंड और डिक्रीज, या तो वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते हुए कर्व हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है इफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी राइजेस, जब सप्लाई क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, तो पहला सिचुएशन क्या होगा, इसमें कह रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगी, वो फॉल कर जाएगी। देखिए पहले क्या था, ई पॉइंट, E1 और E2, ठीक है। जैसे ही प्राइस पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहां पे था, ये सिचुएशन थी इक्विलिब्रियम की, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ कि सप्लाई क्या हो गया, आपका राइज हो गया, तो प्राइस क्या हो गई हमारी, फॉल कर गई। प्राइस हमारी फॉल क्यों कर गई है, क्योंकि हम लोग ने अभी एक्सेस सप्लाई पढ़ा था। एक्सेस सप्लाई में क्या कह रहा था कि जैसे ही सप्लाई क्या हो जाएगी, वो हमारी सप्लाई जैसे ही ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटर ज्यादा हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली प्राइस फॉल कर जाएगी। यहाँ पे आप लॉ ऑफ सप्लाई मत समझिएगा कि लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, की प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहाँ पे वो एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डिमांड भी ले रहे हैं। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हम बस दो चीज के बारे में रिलेशन पढ़ते हैं, प्राइस एंड दी क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के साथ पढ़ तो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी कि बेसिकली हम ये देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग बोलते तो है ना कि क्वांटिटी, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस। बट यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या हो रही है, ओपी से प्राइस OP1 हो गया, तो तुरंत ही क्या हो गया है, क्वांटिटी डिक्रीज हो गया है, सप्लाई डिक्रीज हो गया है। ये इसलिए हो गया है बिकॉज यहाँ पे हम लोग जैसे ही प्राइस, सप्लाई क्या होती है, एक्सेस सप्लाई हो जा रही है, सप्लाई ज्यादा हो जा रही है, मतलब कॉम्पिटिटर मार्केट में ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा सप्लाई करने वाले लोग हो गए हैं, तो अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ जाता है कि सप्लाई प्राइस क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है। और हम लोग ने जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि ceteris paribus देखा था। ceteris paribus मीन्स कि अदर थिंग्स द रिमेनिंग कांस्टेंट, जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड साथ में चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं यहाँ पे कि जैसे ही प्राइस क्या हो जा रही है, आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमने देखा व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्या हो रही है, S से सप्लाई S1 शिफ्ट हो जा रही है, उस कंडीशन पे देखिए प्राइस OP प्राइस थी, अब प्राइस OP2 हो गई है, प्राइस कम हो गई है, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड OM से OM2 हो जा रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ दी डिमांड हो रहा है, डिमांड का एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्यों हो रहा है, बिकॉज
मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम दी अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, पॉइंट ई से E1 जा रहा है। ये आपका क्या हो गया, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। जस्ट इसका ऑपोजिट क्या है आपका, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई क्या हो रही है, वो जब डिक्रीज हो रही है तो क्या कंडीशन हो रही है कि प्राइस जैसे ही सप्लाई डिक्रीज होगी तो कर्व आपका एस कर्व हम आपका S2 पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही कर्व S2 पे शिफ्ट हो रहा है तो ओपी प्राइस से प्राइस OP1 हो जा रही है, प्राइस इंक्रीज हो जा रही है। क्वांटिटी डिमांडेड OM से OM1 हो जा रही है। क्वांटिटी पहले इतना डिमांड कर रहा था, क्वांटिटी इतनी डिमांड होने लग रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों हो रहा है, बिकॉज मूवमेंट अलॉन्ग दी सेम डिमांड कर्व, दिस लोअर पॉइंट से वो अपर पॉइंट पे चला जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड दी डिक्रीज इन सप्लाई एंड दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी एज वेल एज दी एक्सटेंशन ऑफ दी डिमांड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इफ द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2, OP से OP2 पे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है। फॉल इन प्राइस कॉजेस एक्सटेंशन इन डिमांड, प्राइस का जैसे ही फॉल हो रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं E से E1 हो रहा है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM टू OM2, इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, OM से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM2 हो जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई के इंक्रीज होने से एंड द एक्सटेंशन इन द डिमांड, डिमांड के एक्सटेंशन होने। जस्ट ऑपोजिट कह रहा है, इफ द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, जैसे ही जो सप्लाई है कमोडिटी की वो फॉल कर रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1, इक्विलिब्रियम प्राइस OP से OP1 चली जा रही है। डायग्राम में ही देखिए, जो डायग्राम समझ लिया वो इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। डायग्राम में कुछ भी नहीं है, सबसे मेन है आप पहले इक्विलिब्रियम बनाइए और फिर इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई शो करिए, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दीजिए एंड द राइज इन प्राइस फॉर, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बनने के बाद इंक्रीज इन सप्लाई दैट मींस राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज इन सप्लाई मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये सिंपल सा डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ सप्लाई कर्व पे, जब सप्लाई पे शिफ्ट होगा सब सप्लाई कर्व, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ओके। So the next one is effect of change in demand on equilibrium price. Effect of demand effect of change in demand change in demand on equilibrium प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे बस इफेक्ट किस पे दिख रहा है, चेंज इन डिमांड में। बस यहाँ पे क्या होगा, डिमांड ही चेंज होगी, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, जब क्या होगा कि जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, इसमें 5 डायग्राम हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व, जब सप्लाई कर्व क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है। इसमें क्या रहा है, ओके, सो व्हेन देयर इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, ओके, सो इसमें क्या रहा है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो परफेक्टली सप्लाई कर्व होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा एंड इम्प्लाइंग दैट एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सप्लाइड एट द प्रिवेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये हो जाएगा
कि कोई भी कमोडिटी क्या है, सोल्ड आउट होगी, चाहे वो प्राइस उसकी चाहे जितनी भी हो, जितनी भी प्राइस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, द प्राइस विल बी द सेम, और उसकी क्वांटिटी चाहे जितनी भी हो सकती है, बट जो प्राइस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब इसमें दो कंडीशन है, व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। पहले हम डिमांड कर्व बनाएंगे डी डी, कह रहा है कि जब डिमांड कर्व क्या होगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो देन कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट, तो ये हो जाएगा आपका D1 D1। फिर कह रहा है सो द इक्विलिब्रियम प्राइस डज नॉट चेंज रिमेन्स OP बिकॉज सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्राइस में चेंज कोई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई में कोई भी प्राइस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड। द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज क्रिएटेड फ्रॉम OM टू OM1। इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी शिफ्ट हो जाएगी OM1 से। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन डिमांड फॉल्स, जब क्या होगा, डिमांड क्या होगा, फॉल होगा। व्हेन द डिमांड इज फॉल देन द कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड। कर्व क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज D2। अब क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी M2। अब जैसे ही जो क्या हुआ कि हमारा क्या है कि जो डिमांड क्या है वो लेफ्टवर्ड डिक्रीज हुआ है, बट देयर विल नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस, कमोडिटी की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, बिकॉज ये कर्व क्या है, वो परफेक्टली, सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, दैट्स व्हाई द कर्व में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो OM से OM2 हो जाएगी। द मेन बेसिक डिफरेंस इज दैट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, जब जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा, इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक। जब जो सप्लाई कर्व है, सॉरी सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन इन द डायग्राम, जब कर्व परफेक्टली इलास्टिक था दैट इट इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के क्या था, वो पैरेलल था, और वहां पे कोई भी सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा था। अब क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा, सो जो कर्व हो जाएगा वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, वो सप्लाई कर्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू दी, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्सिस तो ये है ना, हाँ वाई एक्सिस के क्या हो जाएगा, वो वाई एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिर क्या कह रहा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, implying that the quantity supplied remains unaffected। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जो भी क्वांटिटी होगी, OM क्वांटिटी होगी, जो हम इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, वो अनअफेक्टेड रहेगी। प्राइस चाहे जितना भी हो जाए बट क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या है, ये पैरेलल टू दी वाई एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है आपके एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो इसमें दो बेसिक कंडीशन है, when demand increases, second is when demand decreases। दो कंडीशन है कि जब डिमांड इंक्रीज होगी और जब डिमांड, ये क्या होगा आपका क्वांटिटी, जब आपकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो पहला है when demand rises, जैसे ही डिमांड राइज होगी, हम एक लाइन बना लेते हैं डिमांड कर्व, जैसे ही हमारी जो डिमांड होगा वो इंक्रीज होगा तो कर्व क्या होगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही कर्व आपका क्या होगा कि द इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1। इक्विलिब्रियम प्राइस पहले कितनी थी, OP थी, अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगी, OP1 हो जाएगी। ठीक, एज देयर इज राइज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, एंड कॉम्पिटिशन अमंग द बायर पुशेस द प्राइस अप। इतने की वजह से क्या हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया, और जब इन दो इसकी वजह से क्या होगी, कंपटीशन हो गया बायर्स के बीच में,
और जो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है कि प्राइस क्या हो जाए, वो इंक्रीज कर जाए। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन एट द सेम, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। यहाँ पे हम परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, इसलिए क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट जैसे ही कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ओपी प्राइस से OP1 प्राइस हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज डिमांड डिक्रीजेस, जब डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा, सो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। जैसे डिमांड फॉल होगा तो हम लोग डिमांड का बनाएंगे D2, ठीक है, यहां पे हो जाएगा नया, जो प्राइस क्या हो जाएगी, OP प्राइस से OP2 हो जाएगा, एंड देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज हियर द परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का, तो प्राइस क्या होगी, OP प्राइस से OP2 हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। Okay, now the next one is effect of change in supply on the equilibrium price and the quantity. अब अभी तक हमने चेंज इन डिमांड पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, चेंज इन सप्लाई, क्योंकि अभी तक डिमांड कर्व में चेंज हो रहा था। अब क्या होगा, डिमांड कर्व में कांस्टेंट रहेगा, मतलब परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक, और चेंज किस में होगा, सप्लाई कर्व में। पहला कह रहा है इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक जब होगा, सो द डिमांड कर्व विल पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कहेगा, इसमें दो कंडीशन होगी, व्हेन द सप्लाई इज इंक्रीजेस एंड व्हेन द सप्लाई इज डिक्रीजेस। तो सप्लाई कर्व आपका SS, ठीक। अब यहाँ पे ये प्राइस एंड द, इसका मतलब ये हो गया है कि प्राइस में, चाहे प्राइस क्या होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, बट क्वांटिटी में चाहे जितना भी चेंजेस हो सकता है, बट प्राइस में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है व्हेन सप्लाई राइजेस देन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू दी राइट, SS टू SS1। जैसे ही सप्लाई कर्व आपका SS दिया है, सप्लाई कर्व राइज हो रहा है, सो इट विल शिफ्ट टू दी राइट, S1 S2, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM टू OM1। अब हम यहाँ पे बना देंगे OM1। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो हमारी OM थी वो इंक्रीज होकर कितनी हो जा रही है, OM1 हो जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को नाम नेम दे दिया करिए E1। फिर कह रहा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM टू OM1 एज देयर इज इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड में भी इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, बट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकंड कंडीशन कह रहा है व्हेन द सप्लाई फॉल्स, जब सप्लाई फॉल करेगी, जैसे ही सप्लाई फॉल करेगी तो जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज S2 S2। फिर क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनेगी यहाँ पे OM2। मतलब अब इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही सप्लाई कम हुई, द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड एंड OM से OM2 क्वांटिटी, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट है इसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इसमें वही होगा आपका पैरेलल टू दी Y एक्सिस। अब तो एकदम सिंपल सा है, यहाँ पे आपका SS कर्व P। अब इसमें क्या है देखिए, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू दी Y एक्सिस। वो Y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, and implying that change in price of the commodity causes no change in the quantity demanded। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, there is
ओनली चेंज इन द प्राइस, बस प्राइस में ही चेंज होगा। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द सप्लाई राइजेस, जब सप्लाई क्या होगी, राइज करेगी। जैसे ही सप्लाई राइज करेगी द कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट वे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल कर जाएगी, आप देखिए जैसे ही मैंने ड्रॉ किया अपने आप प्राइस पता चल गया, तो ओपी प्राइस से प्राइस क्या हो गई, OP1 डिक्रीज कर गई। कंपटीशन इट मीन्स दैट देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, पहले क्या था, इंक्रीज इन सप्लाई था, एंड कंपटीशन अमंग द सेलर पुट्स द प्राइस डाउन, कि जो भी कंपटीशन हो रहा है अमंग द सेलर वो क्या कर रहा है, प्राइस को फॉल कर दे रहा है। ठीक है, सेकंड कह रहा है व्हेन द सप्लाई फॉल्स, जैसे ही सप्लाई क्या करेगी, फॉल करेगी, तो कर्व हमारा किधर शिफ्ट होगा, कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो प्राइस हमारी ओपी प्राइस थी वो प्राइस हमारी OP2 हो जाएगी, एंड देयर इज नो चेंज इन दी कमोडिटी, क्वांटिटी जो हमारी डिमांड और सप्लाई हो रही है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस देयर इज चेंज इन दी ओनली इन द price of the commodity।